So, what is anonymous or lambda function? See, in Python, anonymous functions are created using lambda keyword. Okay, so as its name is anonymous, usually we give some name to the function, but when you are creating anonymous function, you don't need to give any name. So anonymous function you can just create using lambda function. Just a second, I'm admitting some people. Okay, so unlike regular functions, uh, they are defined using def keyword. We have seen the syntax and many examples how to define a function, regular functions. So they are defined using def keyword, whereas lambda functions are limited to a single expression and do not have a name. Okay, so when in your function you have only single expression, you want to perform a operation which you can express in a single expression, then you can use lambda function. So this single expression means this lambda function can only contain single expression which is evaluated and written. जैसे आप इस example में देख सकते हो, this lambda x comma y, this is a function. Okay, so we haven't given any name to it. This is an anonymous function with two parameters x and y. Okay, then we give comma and whatever value you want to return, whatever expression you want to execute, that you write after this colon, just x plus y. So this is the simple lambda function which will return you sum of two numbers. Okay, another feature of lambda function is it has no name. So as you can see here, it has no name and they are very compact. Okay, so they are often used for short simple functions that are not reused elsewhere in the code. राइट, तो ये जो वन लाइन में फंक्शन हम डिफाइन करते हैं ये आप वापस कॉल नहीं कर सकते. राइट, so whenever you want to use, you just define it and use it. They cannot be reused elsewhere in the code. Okay, like you can see here, add is equal to lambda x comma y, it will return x plus y, and then you can just call this add variable and pass value to it. Okay, so usually we consider such variables just as it is to print, but when you assign some lambda function to it, you have to pass them some parameters. Getting it? यस, हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके, हम कुछ प्रैक्टिस Yes, असाइनमेंट ma'am. सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा. फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस simple lambda expression. Okay, okay, now here are some examples given for lambda functions. Okay, so you can see here square equal to lambda x, and what it will return, x star star 2. What is meaning of this? Ma'am, power, ma'am. Power, right? So whenever you will call square, yes, ये example यहाँ पे दिया हुआ है. Whenever you call मैम any एक्स टू द पावर स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर टू में हम ये लैम्डा का यूज करके मैम इसको यूज किया जाता है क्या, मतलब इसका स्क्वायर या फिर क्यूब निकालने के लिए. वैसे अगर आप सिर्फ दोगे जैसे 2 तो आपको क्या रिटर्न होगा यहाँ पे 4. राइट, लेकिन अगर आपको कुछ फंक्शन डिफाइन करना है जो कि स्क्वायर रिटर्न करेगा किसी भी वैल्यू का, तो आप
वो तो सिंगल एक्सप्रेशन है, उसके लिए आप लैम्बडा फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। ऐसे लैम्बडा एक्स, ये क्या हुआ, फंक्शन, right? And what it is returning, it is returning this value x star star 2. Okay, you are storing that value in square. So whenever you will call like this square in bracket 4, it will give call to this lambda function. ये x की value 4 हो जाएगी, it will pass this 4 value to x and it will return 4 star star 2. Okay, so ये इसका result होगा 3. ओके मैम, थैंक यू। yes, समझ में आया कैसे डिफाइन करते हैं लैम्बडा फंक्शन? ये बहुत सिंपल यस एग्जांपल है, मैम। वैसे स्क्वायर तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द फंक्शन डेफिनेशन आई हैव टेकन सिंपल एग्जांपल। ओके, ओके मैम। जस्ट अ मिनट। Okay, and then last type of function that we are going to see is recursive function. Okay, so as you might know, recursive function is the function that call itself from inside, right? So it is a function that call itself in order to solve a problem. Recursive functions are useful for tasks that can be divided into similar subtasks, जैसे factorial, right? A very popular example of recursive function is factorial. तो फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल मुझे निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, टू राइट? फोर इन हाँ, फोर। हाँ, देन यस। factorial of 4 will be equal to 4 into factorial of 3, then factorial of 3 is equal to 3 into factorial of 2, ऐसे करते हैं। So if you want to perform tasks which have similar subtasks, so you can define a recursive function for it. So basically recursive function call itself from inside it, right? The classic example is of calculating factorial of number और ट्रैवर्सिंग डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ट्री। ओके, तो ट्री जैसे कुछ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, उसको अगर आपको ट्रैवर्स करना है तो वहाँ पे भी आप रिकर्सिव फंक्शंस यूज कर सकते हो। तो रिकर्सिव कॉन्सेप्ट, सॉरी, रिकर्सिव फंक्शन हैज टू बेसिक कंपोनेंट्स। एक तो बेस केस। व्हाट इज बेस केस? दिस इज द कंडीशन अंडर विच फंक्शन स्टॉप्स कॉलिंग इटसेल्फ। तो अगर आपने ये फैक्टोरियल का एग्जांपल दिया तो ये कहीं ना कहीं पे तो स्टॉप होगा, जैसे फैक्टोरियल ऑफ 2 विल बी 2 into factorial of 1, right? और factorial of 1 is equal to 1, तो यहाँ जाके ये फंक्शन स्टॉप होगा। It is called as, this case factorial of 1 is called as base case. Okay, and another component of recursive function is recursive case. So what is recursive case? This is part of function where function calls itself with a modified argument, right? तो जैसे ये जो पहले सबसे पहले हमने कॉल किया था वो फंक्शन था फैक्ट ऑफ 5, राइट? इसने कॉल दिया फैक्ट ऑफ 4 को, then this function has called fact of 3, then this function has called fact of 2, this function has called fact of 1. This is called as recursive case. So it is a part of function where function is calling itself with a modified argument. Every time the argument is getting modified. ठीक है, रिकर्सिव फंक्शंस तो आपको पता ही होंगे, राइट? या नहीं पता है? पता है सर मैम। वी विल सी एग्जांपल। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फैक्टोरियल का ही एग्जाम्पल लिया है हमने। तो इसका बेस केस हो सकता है कि एफ एन इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 1 रिटर्न 1। दिस इज व्हाट बेस केस। एंड रिकर्सिव केस क्या है इसका? रिटर्न एन स्टार फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1। ओके, सो एवरी टाइम ये जो है वैल्यू, दिस विल बी मॉडिफाइड in every call, and then it will reach to this base case every time, and then you will get the output. ओके, तो जैसे हमने 5 दिया तो हमें मिलेगा 120 एज एन आउटपुट।
Any doubt in recursive function? And मैम होल्ड ऑन। sorry, 1 मिनट मैम, प्रोग्राम देख रहे थे। हाँ हाँ देख लो। मैम एक बार प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देंगे क्या? हाँ वो मैं एग्जीक्यूट वाली हूँ आपको। ये तो स्लाइड ओके मैम। मैं आपको VS कोड में एग्जीक्यूट करके दिखा रही ओके हूँ। मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, okay, I'll share my screen again. I think it's too. Is my screen visible now? यस मैम। यस मैम। Okay, now we'll see execution of both lambda function and this recursive function here in VS Code. Okay, and after that we'll solve some practice examples so it will be clear to you. यहीं से मैं कॉपी करती हुई ये एग्जाम्पल। ठीक है। ओके, पहले हम लैम्बडा फंक्शन का करते हैं, उसके बाद इसका करेंगे। लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, लैम्बडा फंक्शन का आप सिंटैक्स याद रखो बिकॉज इट इज वेरी डिफरेंट देन अदर फंक्शंस। ओके, सो ऐड, जैसे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया वैसे ही ऐड इक्वल टू लैम्बडा एक्स कॉमा वाई, दीज आर द पैरामीटर्स, एंड देन कोलन। उसके बाद ये जो है ये फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपको चाहिए, जो भी रिटर्न करना है, दैट एक्सप्रेशन यू हैव टू राइट। ओके, and then we are calling add like this, add in bracket 2 comma 3। okay, तो हमें अब ये एग्जीक्यूट करते हैं। so here you can see the output, right? print add 2 comma 3, so this function is returning what? X plus y, that is 2 plus 3। okay, very simple। and now we'll execute this recursive function। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। So this is the recursive function। okay, so usually हम function यस मैम। कैसे define करते हैं? using def, right? so def factorial, name of the function is factorial, it has one parameter that is n, right? then we have return condition, if n equal to 0 or 1 return 1, because 0 और या फिर 1 का factorial 1 होता है, which is our base case। एंड एल्स में लिखा है हमने रिटर्न n स्टार फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, राइट? जैसे हमने 5 पास किया तो यहाँ से होगा 5 स्टार फैक्टोरियल ऑफ 4, तो फिर से ये फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा, राइट? so 4 is not equal to 0, it is not equal to 1, so again it will go in else part and it will return 4 star factorial of 3, then next call will return 3 स्टार फैक्टोरियल ऑफ 2, ऐसे होते जाएगा, फिर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट? सो एज सुन एज वैल्यू ऑफ n बिकम्स 1, इट विल रिटर्न 1, और जो पहला फंक्शन था उसमें जाएगा। ठीक है, सो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 ऐसे होगा, और फिर लास्ट में हमें फैक्टोरियल की वैल्यू मिलेगी 120। ओके, तो अभी मैं ये रिकर्शन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। लैम्बडा फंक्शन को मैंने कमेंट कर दिया, just a second। okay, so here you can see it has printed 120, got it?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we'll solve an assignment based on this. Just a second. Okay, so assignment on user defined function. This section 1 we have already completed, which contain user defined function regular. And now in section 2 we have uh, problems related to lambda functions and recursive function. Okay, now we'll solve them one by one. So first question here is given a list of tuples representing students and their grades. This is the list, and write a lambda function to sort this list by grades in descending order. Okay, मैं ये पूरा प्रॉब्लम ही कॉपी करके लेती हूँ VS कोड में. We'll now comment out this factorial. Okay, after that I'll paste this problem statement. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है? We have given a list. That list contain multiple tuples, right? This is the list. Inside that we have how many tuples? Yes, how many tuples are there in the student list? 4, ma'am. 4, right? So first we will create a list. This is our list. Okay. हमें क्या करना है? Using lambda function, we have to sort this list by grades in descending order. So in this list we have 4 tuples. In every tuple we have a name and grade. So John 88, Emma 95, Sam 78, Oliver 92. So these are the grades of that particular student. अभी हमें ये जो लिस्ट है ये अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, बट वी हैव टू यूज लैम्बडा फंक्शन. ठीक है, तो सॉर्ट तो हम सॉर्ट फंक्शन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें यूजिंग ग्रेड सॉर्ट करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? विल फर्स्ट डिफाइन अ लैम्बडा फंक्शन विच विल रिटर्न ग्रेड ऑफ एवरी स्टूडेंट. ओके, तो कैसे लिखेंगे लैम्बडा फंक्शन? जैसे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया ग्रेड इक्वल टू लैम्बडा, उसको एक पैरामीटर देंगे हम, जैसे एक टपल दिया हमने, और टपल का क्या रिटर्न करना है? फर्स्ट एलिमेंट. So this is the lambda function to which you will give any tuple and it will return you first element of tuple. Okay, so ये अगर tuple आपने कंसिडर किया तो इसका 0th एलिमेंट होगा जॉन और फर्स्ट एलिमेंट होगा 88. Okay, so this lambda function we are using to return first element of any tuple. आया समझ में लैम्बडा फंक्शन का पर्पस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ व्हाट वी विल डू, हमें क्या करना है अभी? यूज दैट लिस्ट डॉट सॉर्ट. ओके, और इसके अंदर अगर हम सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं तो सॉर्ट फंक्शन को एक फर्स्ट पैरामीटर होता है की, तो हम की इक्वल टू देंगे ग्रेड, और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे और एक पैरामीटर देंगे रिवर्स ट्रू. ठीक है, जब भी आपको डिसेंडिंग में कोई भी सॉर्ट करना हो तो रिवर्स ट्रू देते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट असेंडिंग होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट का वन बाय वन एलिमेंट ये लैम्बडा फंक्शन फेच करेगा. ओके, एंड देन सॉरी, स्टूडेंट का वन बाय वन ग्रेड ये लैम्बडा फंक्शन फेच करेगा, एंड देन वी आर सॉर्टिंग दैट स्टूडेंट लिस्ट अकॉर्डिंग टू इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, मैं आपको ये प्रिंट करके बताती हूँ. और जब आप प्रिंट करोगे स्टूडेंट्स
You will see the list in sorted order. Okay, let us execute this program. Okay, can you see the output? Yes, According, ma'am. so Yes, ma'am. according to grade, it has sorted the elements. आया समझ में? Yes, ma'am. मैम लैम्डा फंक्शन का यूज हमेशा क्या कहा जाता है मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए, मतलब मैथमेटिकल चीजों के लिए यूज किया जाता है क्या, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर? नहीं, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए तो हमने सॉर्ट फंक्शन यूज किया है, राइट? लैम्बडा फंक्शन का यूज क्या है कि कभी भी आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि जो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है या सिंगल स्टेटमेंट है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक पूरा फंक्शन ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ओ यानी कि कोई भी शॉर्ट प्रोग्राम जैसे कि पूरा डिफाइन डिफाइन नहीं करने की जरूरत है, लैम्डा फंक्शन का यूज करके हम एक लाइन के कोड को एक एग्जीक्यूट लाइन, कर सकते हैं। राइट, यू डोंट नीड टू गिव नेम एंड डिफाइन फंक्शन एंड देन कॉल दैट फंक्शन, राइट? यहाँ से हमने वो फंक्शन कॉल कर लिया, ग्रेड। अब यस आप मैम। वेरिएबल नेम जहाँ पे देते हो जिसमें आपने लैम्बडा फंक्शन स्टोर करके रखा है, वो वेरिएबल नेम आपने दिया तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है? तो ये ग्रेड को ऑटोमेटिकली ये स्टूडेंट्स का लिस्ट जाएगा, और ये लैम्बडा फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है? लैम्बडा फंक्शन बाय डिफॉल्ट, लैम्बडा फंक्शन हमारा, ये जो लैम्बडा फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ये क्या कर रहा है, ये आपको समझ में आया? मैम इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है, बट ये एक्स जो है वो वन से आपने स्टार्ट किया है, तो ये थोड़ा सा वन एक बार और डिफाइन कर दीजिए। सी, मैंने यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है, ये आप समझिए। ये जो अ, लैम्बडा एक्स है, ये क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। जैसे मैं कोई भी फंक्शन डिफाइन करती हूँ, मैं आपको वही मैं बता रही थी यहाँ पे, जैसे मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है जो मुझे टपल टपल की फर्स्ट वैल्यू देगा। जैसे ये अगर मेरा टपल है, तो इसके 0th इंडेक्स पे क्या है? नेम, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? स्कोर और ग्रेड, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यस मैम। हाँ, एक फंक्शन में डिफाइन करूंगी ग्रेड, या फिर एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं ई एक्स, ओके? इसको एक पैरामीटर होगा x, देन इसके अंदर हम लिखेंगे रिटर्न x ऑफ 1। तो इसको जो भी हम टपल पास करेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट ये रिटर्न करेगा, राइट? ये हुआ रेगुलर फंक्शन। यही फंक्शन अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? लैम्बडा एक्स कोलन एक्स ऑफ 1, सेम है ये और ये सेम है। तो ये एक्स क्या है? ओके मैम। उसका एक पैरामीटर है, और ये क्या है? उसका रिटर्न वैल्यू है, ओके मैम। राइट? जैसे मैंने आपको ये पहले फंक्शन में बताया था, जो फंक्शन ये यहाँ पे लिखा था हमने, ऐड वाला, ठीक है? तो इसमें क्या था? ये जो x, y थे, ये क्या थे? पैरामीटर्स थे फंक्शन के, और वो रिटर्न क्या कर रहा था? x प्लस वाई। यस मैम। हाँ, वैसे ही अभी जो हमने लैम्बडा फंक्शन लिखा है, उसका ये जो x है वो है पैरामीटर। जैसे इस फंक्शन का ex फंक्शन का x पैरामीटर है, वैसे ही ये लैम्बडा फंक्शन का ये है पैरामीटर और आर्गुमेंट, और ये रिटर्न क्या कर रहा है? वैल्यू x ऑफ 1। यस मैम। हाँ, अभी लैम्बडा फंक्शन हम कुछ वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है? जैसे अगर आपको ये फंक्शन कॉल करना है, ex वाला फंक्शन अगर आपको कॉल करना है तो आप कैसे करोगे? ex इन ब्रैकेट यू कैन गिव एनी टपल, जैसे ये टपल दिया आपने, और ये क्या रिटर्न करने वाला है?
x of 1, तो वो वैल्यू आप किसी में स्टोर करोगे, किसी वेरिएबल में। गॉट इट? यहाँ पे हमने क्या किया, ex फंक्शन कॉल किया, उसको एक टपल पास किया, और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया, राइट? ये रेगुलर फंक्शन का फॉर्मेट है, समझ में आया आपको? पाइथन यस में मैम। हम रेगुलर फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसका ये फॉर्मेट है। तो ये जो तीनों लाइन है, इसको हम एक ही लाइन में लैम्ब्डा फंक्शन से ऐसे लिखते हैं, ठीक है? अभी फिर उसको आप कुछ भी पास करो, इट विल रिटर्न यू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द टपल। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। ओके, और फिर हमने क्या किया, यहाँ से वो फंक्शन को कॉल किया, और सॉर्ट जो फंक्शन है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, की एंड रिवर्स। अगर मैं ये रिवर्स ट्रू निकाल देती हूँ सपोज, तो मुझे सारे एलिमेंट्स मिलेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमें चाहिए थी डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए रिवर्स ट्रू लिखा था। ओके, तो हम ये भी देखते हैं, अभी मैंने रिवर्स ट्रू निकाल दिया, तो आप अगर देखोगे तो ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर में, राइट? और जब जैसे ही आप यहाँ पे रिवर्स ट्रू लगा दोगे तो ये सॉर्टिंग होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? तो ये लैम्ब्डा फंक्शन का काम नहीं है। लैम्ब्डा फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ टपल का फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है? सॉर्टिंग का काम तो सॉर्ट फंक्शन कर रहा है। देखिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now second question, given a list of numbers, use lambda function with a filter function to get a list of even numbers. Okay, तो ये मैं आपको बताती हूँ, लैम्ब्डा फंक्शन के आप साथ आप बहुत सारे फंक्शंस यूज कर सकते हो। जैसे हमने अभी सॉर्ट देखा, वैसे ही अभी हम एक फिल्टर फंक्शन देखेंगे। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ लैम्ब्डा फंक्शन। क्या है हमारे पास, एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिसमें नंबर्स है फ्रॉम 1 to 10। हमें क्या करना है, लैम्ब्डा फंक्शन डिफाइन करना है, जो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ इवन नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है? तो उसके साथ अगर हमें फिल्टर, एक हम लैम्ब्डा फंक्शन लिखेंगे जो नंबर इवन है या नहीं वो चेक करेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद उसके ऊपर हम फिल्टर फंक्शन लगाएंगे और ये लिस्ट पास करेंगे, जैसे जिससे वो ये नंबर की लिस्ट ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगी बाय चेकिंग कंडीशन गिवन इन लैम्ब्डा फंक्शन। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, डोंट वरी। एक लैम्ब्डा फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, लैम्ब्डा एक्स। चेक कैसे करते हैं हम, कोई भी नंबर इवन है या नहीं? मैम डबल डिविजन ऑफ 2 मैम। क्या कोई भी नंबर इवन है या नहीं, वो कैसे चेक करते हो वो बताओ मुझे पहले आप। इफ कंडीशन से चेक करते हो आप? अगर मैम मुझे इफ कंडीशन लगा के 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड करते हैं या मॉड करते हैं, एक्स मॉड 2 इक्वल टू 0 है, मैम मॉड रिमाइंडर नहीं बचनी चाहिए। राइट? एक्स मॉड 2 0 है मतलब नंबर इवन है, ये तो पता है आपको। अरे यस मैम। तो हम क्या करेंगे, ये इफ वाली जो कंडीशन है वो सिर्फ लैम्ब्डा फंक्शन में डालेंगे। तो अभी ये लैम्ब्डा फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, क्या रिटर्न करेगा ये लैम्ब्डा फंक्शन? मैम एक्स
मॉड 2 की हुई है तो मैम रिमाइंडर 0 अगर इक्वल आ गया तो इवन नंबर ही आएगा, हाँ, लेकिन ये जो मतलब लैम्बडा इवन फंक्शन नंबर। है ये कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? सी व्हाट वी आर डूइंग हियर, एक्स मॉड 2 इक्वल टू 0, तो ये जो लैम्बडा फंक्शन है ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। आ रहा है समझ में? बुलियन बुलियन। यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन दिया है, इसलिए ये जो लैम्बडा फंक्शन है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. यस। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम लगाएंगे एक फिल्टर नाम का फंक्शन होता है। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर फंक्शन को हम एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं और एक बूलियन वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो हमारा लैम्बडा फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है? और ये फिल्टर क्या करता है, इस लिस्ट में हर एक एलिमेंट पे ये कंडीशन अप्लाई करता है और जहां जहां पे ये कंडीशन ट्रू होगी वो नंबर रिटर्न करता है, ठीक है? तो जितने भी नंबर्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी उसका हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है? तो इसके ऊपर मैं एक लिस्ट फंक्शन अप्लाई करती हूँ, ओके? और ये लिस्ट हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, जैसे इवन numbers, and then I will print even numbers, ठीक है? पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं फिर मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, ओके? तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट, फ्रॉम दैट लिस्ट इट हैज एक्सट्रैक्टेड ओनली इवन नंबर्स। गॉट इट? अगर हमें और यस मैम। सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्बडा फंक्शन हम ऊपर ही डिफाइन करते हैं, इसको हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में और वो वेरिएबल यहाँ पे हम पास करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फंक्शन ये क्या करेगा, ये वेरिएबल जैसे ही आप लिखोगे तो ये लैम्बडा फंक्शन को कॉल करेगा, फॉर एवरी नंबर इट विल चेक दैट कंडीशन एंड विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ओके? सो इफ आई अगेन एग्जीक्यूट यू विल गेट द सेम आउटपुट, ठीक है? तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है, एक ही लाइन में नेस्टेड लिखने से अच्छा है, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर? Yes, ma'am. Okay, let us move to the next problem. Given a list of numbers, use lambda function with map function to create a new list with each number squared. ओके, तो अभी क्या चाहिए हमें, हम एक लिस्ट पास करेंगे और हमें एक लिस्ट ही रिटर्न करनी है जिसमें वो सारे नंबर्स के स्क्वायर होंगे, ठीक है? यूजिंग लैम्बडा फंक्शन। So we'll take this list numbers, then एक लैम्बडा फंक्शन लिखना है। अभी हमारा लैम्बडा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आप बताओ अभी। आई एम डिफाइनिंग अ लैम्बडा फंक्शन, एक्स स्टार्ट हो, क्या करेगा, एक्स मैम एक्स एस्टिक एस्टिक टू। वेरी गुड, एक्स एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2। सो ये हमारा लैम्बडा फंक्शन रिटर्न करेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर, ओके? तो ये सिंपल ऐसी फंक्शनैलिटी के लिए हम लैम्बडा फंक्शन यूज करेंगे। नाउ हमें क्या करना है कि ये नंबर्स पास करना है और ये नंबर के साथ मैप करके उसका
स्क्वायर निकालना है, तो फॉर दैट वी हैव अ मैप फंक्शन. मैप फंक्शन जस्ट लाइक फिल्टर, एक वैल्यू और फिर इसी के साथ हम पास करेंगे लिस्ट. जो लिस्ट है हमारा नंबर्स का वो हमने यहाँ पे पास किया. अभी मैप से जो भी रिटर्न होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में. ओके, तो ये बन गया हमारा लिस्ट ऑफ स्क्वायर्ड नंबर्स. सो SQNum, मैं इसका नाम देती हूँ. ओके, और इसके बाद हम प्रिंट करते हैं SQNum. ओके, इफ यू चेक द आउटपुट, तो यहाँ पे आप आउटपुट देखो 1 4 9 16 25. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ स्क्वायर्ड नंबर्स. मैम इसी तरह क्यूब के लिए मैम एक्स एक्स्ट्रिक एक्स्ट्रिक थ्री मतलब क्यूब लिख देंगे तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी अगर इसका निकालना चाहे तो. यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं और हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी. ऐसे आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो. राइट, जैसे आपको ये नंबर है, इसमें 5 ऐड करके चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दोगे x+5. ओके, तो +5. जो एक लाइन में ऑपरेशन होगा वो आप यूजिंग लैम्बडा फंक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने पहले इसमें देखा कि यहाँ से हमें फिल्टर करना था तो उसके लिए फंक्शन है फिल्टर. यहाँ पे हमें हर एक नंबर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है यूजिंग मैप, तो यू कैन यूज दिस मैप फंक्शन. और इसमें आप डायरेक्टली एज एन आर्ग्यूमेंट ये भेज सकते हो. ठीक है, एक बार आप यूज टू हो जाए, थोड़े प्रैक्टिस एग्जांपल ऐसे ही आप सॉल्व करो तो आपको समझ में आएगा कि लैम्बडा कैसे यूज करना है. तो आप एक ही लाइन में ये पूरा लिख सकते हो. अदरवाइज यू कैन स्प्लिट इट लाइक दिस, एक वेरिएबल लो, उसमें पहले लैम्बडा फंक्शन डिफाइन करो और वो वेरिएबल यहाँ पे पास करो तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है. ठीक है, ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो नेक्स्ट 3 है ये है रिकर्सिव फंक्शन के एग्जांपल्स. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड nth नंबर इन फिबोनाची सीक्वेंस. ओके, तो फिबोनाची सीक्वेंस का एग्जांपल हमने पहले देखा था, लेकिन यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन अभी हम वो करेंगे. ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन वेरी इजी है. तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फिब, इसको हम पास करेंगे एक नंबर. ठीक है, इसके अंदर हम पहले लिखेंगे एक बेस केस, जैसे इफ, पहले तो वैलिडेट करेंगे इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0, गिव सम मैसेज लाइक रिटर्न इनवैलिड नंबर. ओके, नाउ यहाँ पे हम बेस केस देंगे, जैसे एल इफ n इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट नंबर चाहिए. ये यहाँ पे फिब को हम क्या पास कर रहे हैं कि आपको सीक्वेंस का कौन सा नंबर चाहिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिबोनाची सीक्वेंस लिखती हूँ 0 1 देन 1 2, उसके बाद 3 5 देन 8 13. ओके, तो अगर यहाँ पे हमने 0 पास किया, सॉरी 1 पास किया, तो क्या रिटर्न होना चाहिए, 0. राइट, अगर आपको सेकेंड नंबर चाहिए तो रिटर्न होना चाहिए 1. आपको फिबोनाची सीक्वेंस का थर्ड नंबर चाहिए, मतलब आपने फिब इन ब्रैकेट 3 दिया तो आपको रिटर्न होगा 1. अगर आपने फिब इन ब्रैकेट 4 दिया तो रिटर्न होना चाहिए 2, लाइक दैट.
ओके, तो एनी नंबर यू कैन एंटर एंड सीक्वेंस का वो नंबर आपको रिटर्न हो जाना चाहिए। तो इसके लिए बेस कंडीशन है कि इफ लेस देन और इक्वल टू 0 है तो नंबर इज नॉट वैलिड। इफ n इज इक्वल टू 1 है तो हम रिटर्न करेंगे व्हाट, 0, सॉरी, राइट। 2 भी है तो भी हम रिटर्न करेंगे व्हाट, 2 है, फिर भी हम क्या रिटर्न करेंगे, सॉरी, l if n इक्वल टू 2 वी विल रिटर्न, क्या रिटर्न होना चाहिए अगर 2 है तो, 2 है तो भी रिटर्न क्या होना चाहिए, कौन सा सेकेंड नंबर है फिबोनाची सीक्वेंस का, सेकेंड नंबर कौन सा है, बोलो जल्दी। 1। फिबोनाची सीक्वेंस का सेकेंड नंबर कौन सा है, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस भी लिखा है, इसमें से आप सेकेंड नंबर नहीं निकाल सकते क्या, ये है ना सेकेंड नंबर। क्वेश्चन पहले तो आप समझ लो कि सी यहाँ पे हम फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड nth नंबर इन फिबोनाची सीक्वेंस। मतलब अगर किसी को थर्ड नंबर चाहिए फिबोनाची सीक्वेंस का तो वो क्या होगा 1, किसी को फोर्थ चाहिए तो होगा 2, किसी को 10th चाहिए तो इस सीक्वेंस में जो 10th नंबर आएगा वो रिटर्न करना है हमें। आ रहा है समझ में? तो अगर मैंने n इक्वल टू 2 दिया तो रिटर्न क्या होना चाहिए, सेकेंड नंबर कौन सा है फिबोनाची सीक्वेंस का, 1 मैम। 1। वन, 1। राइट। तो ये हो गए हमारी बेस केसेस फॉर रिकर्शन। ठीक है, अभी हम लिखेंगे रिकर्सिव केस। ठीक है, तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2, राइट। मतलब अगर मुझे ये नंबर चाहिए तो ये कितना, इसका सीक्वेंस नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कैसे आया, 6 नंबर कैसे आया मेरे पास, फिबोनाची ऑफ फोर्थ प्लस फिबोनाची ऑफ फिफ्थ से जनरेट होता है फिबोनाची ऑफ 6। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे ये रिकर्सिव कंडीशन दिया, फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2। ओके, सो आफ्टर दैट वी विल कॉल दैट फंक्शन, जैसे मुझे फिबोनाची सीक्वेंस का चाहिए 7th नंबर, सो आई विल पास फिब ऑफ 7। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट फिब ऑफ 7। तो फिब ऑफ 7 दिया तो क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ, यस, फिब ऑफ 7 से क्या प्रिंट होना चाहिए, आपके सामने सीक्वेंस है, 7th नंबर आप काउंट नहीं कर सकते क्या सीक्वेंस का, 8। 8, राइट। तो अभी एग्जीक्यूट करके हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे फिब ऑफ 8 देती हूँ तो प्रिंट होगा 13, राइट, 13। अगर मैं यहाँ पे फिब ऑफ 10 दूंगी तो जो आगे वाला जो कुछ भी नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, राइट, 34। लाइक दैट it will generate the Fibonacci sequence number in this Fibonacci sequence। आया समझ में रिकर्सिव फंक्शन?
आई होप इट इज क्लियर। नहीं है तो आप खुद से ट्राई करके देखो तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम विल सॉल्व हियर। Write a recursive function to calculate sum of digits of a given number। या फिर हम ये वाला देख लेते हैं, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फ्लैटन अ नेस्टेड लिस्ट। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। पहले तो मैं आपको समझाती हूँ उसका मतलब। फ्लैटन टू फ्लैटन अ नेस्टेड लिस्ट मीन्स क्या है कि अगर आपके पास जैसे एक लिस्ट है, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है L1। ओके, इसमें नेस्टेड लिस्ट है, एक एलिमेंट है 1, उसके बाद एक सेकेंड एलिमेंट है 2 3, ठीक है। इसके अंदर और एक नेस्टेड लिस्ट है 4। ओके, देन अगेन आई हैव 5, इसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट है 6, देन 7, then again I am having nested list, okay, and then 10। okay, तो ये क्या है, list of lists, right? Some elements are there and some lists are there। तो इसको फ्लैट करना मतलब क्या करना, मुझे ऐसी एक लिस्ट चाहिए ये L2 जिसमें क्या होंगे, सिर्फ एलिमेंट्स होंगे, नो मोर लिस्ट्स। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे मुझे ये लिस्ट फ्लैट कर बनाना है। दिस इज कॉल्ड एज फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट। ओके, तो यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन वी कैन flatten out the list। So for that we'll define a function flat list और इसको हम पास करेंगे एक लिस्ट जैसे L1। ओके, अगेन इसमें फिर से एज इट इज अ रिकर्सिव फंक्शन, इसमें भी होगी एक बेस केस और एक रिकर्सिव केस, राइट। तो इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं f अंडरस्कोर लिस्ट और एम्प्टी स्ट्रिंग से इसको इनिशियलाइज करते हैं, बिकॉज इस फंक्शन से हम ये लिस्ट रिटर्न करेंगे, ठीक है। जो भी फ्लैटन लिस्ट होंगी वो हम रिटर्न करेंगे। नाउ विल स्टार्ट अ फॉर लूप फॉर ईच एलिमेंट इन L1, या फिर यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम ले लो नेस्टेड लिस्ट, इसको हम नेस्टेड लिस्ट पास करेंगे। देन फॉर ईच एलिमेंट इन नेस्टेड लिस्ट, इसके अंदर हम लिखेंगे बेस केस। बेस केस क्या लिखना है, if that element is a list then we have to flat it, otherwise we will append that element। सी, अगर कोई भी आप लिस्ट दोगे ऐसी, तो इसमें कौन से दो टाइप के एलिमेंट है, एक तो सिंपल एलिमेंट है या फिर लिस्ट है, ठीक है। तो एलिमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सिंपल एलिमेंट है या फिर लिस्ट है। तो हम चेक करेंगे इफ एलिमेंट इज अ इंस्टेंस ऑफ लिस्ट और नॉट। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है इज इंस्टेंस। इस इंस्टेंस से हम चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट है वो लिस्ट का एलिमेंट है या नहीं, ठीक है। तो अगर वो लिस्ट है तो हमें क्या करना है, सेम फंक्शन कॉल करना है, दिस फ्लैट लिस्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, फ्लैट लिस्ट इस पे कॉल करेंगे एलिमेंट पे। ओके, और ये जो है ये हमें क्या करना है, जो हमारी ये एफ लिस्ट ली है हमने ब्लैंक लिस्ट, उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। इसका जो आउटपुट होगा वो हमें जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है हमारी फ्लैट लिस्ट,
इसमें ऐड करना है. So that is why I have written f_list.extend. ओके, तो ये हो गया हमारा रिकर्शन. अगर जो एलिमेंट है वो लिस्ट का इंस्टेंस नहीं है, मतलब वो सिंपल एलिमेंट है, ठीक है. तो अगर सिंपल एलिमेंट है तो उसको हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम उसको अपेंड कर देंगे. अपेंड एलिमेंट. तो ये हो गई बेस केस और ये हो गई रिकर्सिव केस. और इसके बाद ऐसे ये फॉर लूप सारे एलिमेंट्स पे चलेगा एज लॉन्ग एज एवरी एलिमेंट इज फ्लैटेंड, और हम उसको फॉर लूप में ही अपेंड करते जाएंगे. और लास्ट में हम रिटर्न करेंगे हमारा एफ लिस्ट. सॉरी, यहाँ पे भी एफ लिस्ट चाहिए, फ्लैट लिस्ट इज द एफ लिस्ट, और हम रिटर्न करेंगे यहाँ से एफ लिस्ट. ओके, नाउ वी विल कॉल द फंक्शन फ्लैट लिस्ट. और ये फ्लैट लिस्ट को हम एक लिस्ट देते हैं जो हमने यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट लिया था. मैं वही कॉपी करती हूँ. ओके, और इसका जो आउटपुट है वो हम प्रिंट करेंगे. तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट फ्लैट लिस्ट एंड आई हैव गिवन सम लिस्ट टू इट. नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस. ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, फ्लैट लिस्ट. समझ में आया ये? कुछ डाउट है इस फंक्शन में? No, ma'am. Okay, so one more question is here in the assignment that I am giving you for homework. क्या करना है इसमें, write a recursive function to calculate sum of digit of a given number. ठीक है, using recursion function, using recursion you have to find sum of the digit. Okay, तो सम ऑफ डिजिट के लिए क्या करना है आपको, Okay, ma'am. नम मॉड 10 करना है और उसमें फिर से सम ऑफ डिजिट नंबर कॉल करना है. ठीक है, वेरी सिंपल है, आप ट्राई करके देखो. ओके, सो टुडे विल स्टॉप. थैंक यू सो मच.